اگر کراچی کی مردم شماری ٹھیک نہیں ہوئی، پاکستان میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس موجودہ وفاقی حکومت نے کراچی سے 14 ایم این ایز اور 25 ایم پی ایز کی سیٹ اور مینڈیٹ لینے کے باوجود کراچی کے پیٹ پہ چھرا گھونپا ہے۔ ایک متنازع مردم شماری جس کو چیف جسٹس پاکستان کہہ رہے ہیں 3.5 کروڑ سے کم کی آبادی نہیں ہے کراچی کی، جس کو آصف علی زرداری آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ 3 کروڑ سے کم کی آبادی نہیں ہے کراچی کی، جس کو نادرا کا ریکارڈ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے 2 کروڑ 40 لاکھ تو صرف کراچی کے ایڈریس پہ شناختی کارڈ جاری کر رکھے ہیں۔ اس مردم شماری کو 1 کروڑ 60 لاکھ کے غلط مردم شماری کو اس وفاقی عمران خان صاحب کی اس وفاقی حکومت نے، اس کی کیبنٹ نے اس کے اوپر مہر لگا دی، اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اس کو لیگل قرار دے دیا گیا ہے۔ اور وہاں پر ایم کیو ایم کے 2 وزیر بیٹھ کر صرف 4 لائن کی اعتراضی نوٹ لکھ کر وہ انہوں نے نیم رضامندی دے کر اس کو اپروو کرا دیا۔ اس سے بڑی کوئی زیادتی ہو نہیں سکتی۔ ہمارا مطالبہ ہے، بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس حکومت کی اوقات نہیں ہے کوئی کام ٹھیک کرنے کی، لیکن جو کام غلط ہوئے ہیں اس کے اوپر صحیح کی مہر نہ لگائے، اتنی سی بات ہے۔ جو کام غلط ہوا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس مردم شماری پر یہ کیبنٹ کی مہر لگ گئی ہے اور اس کو اگر اپروو کر دیا تو آئندہ ہونے والی تمام مردم شماری کی بیسس کو یہی بنائیں گے، اسی کو بیس بنا کے اگلی مردم شماری بھی غلط ہوگی، تو امیجن کریں کہ 3.5 کروڑ لوگ رہ رہے ہوں گے، 1.5 کروڑ کا پانی ملے گا، 1.5 کروڑ کے دواؤں کے پیسے ملیں گے، 1.5 کروڑ کے اس کو تعلیم کے پیسے ملیں گے، یہاں پر روزگار کے مواقع وہ نہیں ہوں گے، یہاں پہ سیٹیں وہ نہیں ہوں گی، سب کچھ تباہ برباد ہوگا۔ اور کراچی جو کہ پاکستان کا ریونیو انجن ہے، پاکستان کی اکانومی کی شہرگ ہے، کراچی کو تباہ کرنا ملک کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ اب اس پہ سیاسی پارٹیوں کا ذرا طرز عمل دیکھیے۔ پی ٹی آئی نے تو چھرا گھونپ دیا مینڈیٹ لینے کے بعد، تو ان کا تو یہ فرض بنتا تھا کہ اس کے اوپر وہ 5% آڈٹ کراتے وزیر اعظم کے اپنے ہاتھ میں کام، اس میں کوئی صوبائی حکومت کی مداخلت نہیں ہے، لیکن وہ ہر چیز میں، ہر معاملے میں صوبائی حکومت کو الزام ٹھہراتے ہیں۔ اس میں تو پیورلی ان کا کام تھا کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہر سینسس کو 5% آڈٹ کرائیں گے۔ آپ میرے ساتھ چلیں نارتھ اعظم آباد ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، وہاں پر ووٹر لسٹوں میں ووٹوں کی تعداد زیادہ ہے اور لوگوں کی تعداد کم ہے۔ سینسس میں جو لوگوں کی تعداد ہے، انسان کم ہے اور ووٹر زیادہ ہیں، یہ کیا مذاق ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس مردم شماری کو یہ وفاقی حکومت بجائے اس کے کہ آڈٹ کراتی 5%، اس نے اس کے اوپر کیبنٹ کی مہر لگا دی ہے۔ تو ان کا طرز عمل تو آپ کے سامنے آ گیا۔ کراچی والوں کو ہوش کرنا چاہیے کہ تبدیلی ایسے آئی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ایم کیو ایم جو کہ جس نے کیمپین چلائی ہے پوری، ایم کیو ایم 35 سالوں سے اس شہر کی چوکیداری کر رہی ہے، بدقسمتی کے ساتھ اس نے چوروں کے ساتھ مل کر اس شہر کو اس چوکیدار نے ساتھ لوٹا ہے، اور یہ موقع بھی اس نے اس شہر والوں کو لوٹنے کا ضائع نہیں کیا اپنی 2 وزارتوں کے لیے اور اپنے آپ کو جیلوں میں بند ہونے سے بچانے کے لیے، کیونکہ ان کا میئر کرپشن کر کے باہر گھوم رہا ہے، اور ان کی جی آئی ٹیز میں ان کے رہنماؤں کے نام ہے کہ یہ را کے ایجنٹ جو پکڑے گئے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ جو ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ہیں، ان را کے ایجنٹوں کو انڈیا چھوڑ کر آنے والے وہ سربراہ خود ہیں، تو ان کی جی آئی ٹیز میں نام ہے۔ تو اپنے آپ کو حوالات اور جیلوں اور پابند سلاسل ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے کراچی والوں کی قسمت کا، ان کی نسلوں کا ایک دفعہ پھر سودا کر دیا، اور انہوں نے اس کیبنٹ میٹنگ میں اس بات کی اپروول کرا دی ہے۔ رہی بات پیپلز پارٹی کی، جو کہ سندھ کی سربراہ پارٹی ہے، سندھ میں جس کی حکمرانی ہے، جو کہتی ہے کہ کراچی سے لے کر کشمور تک کے مالک ہم ہیں اور کراچی اس کا دارالخلافہ ہے سندھ کا، اس کا کیا طرز عمل ہے؟ بھائی سندھ کا دارالخلافہ ہے نا کراچی، تو سندھ کے دارالخلافہ کی آبادی کی اگر 1.5 کروڑ 1 کروڑ 60-70 لاکھ کم کر دی گئی ہے تو ان کو تکلیف ہونی چاہیے، ان کو نہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ اس لیے تکلیف نہیں ہو رہی ہے کہ بھئی آبادی کراچی کی کم کی گئی ہے اور اس سے ان کو فائدہ ہے۔ آپ یاد کریں، اب سے چند مہینوں پہلے کی تو بات ہے کہ اس شہر میں ایک واقعہ پیش آیا کہ مریم نواز صاحبہ کے شوہر کو
सिंध पुलिस ने किसी के कहने पर गिरफ्तार कर लिया, सफदर, कैप्टन सफदर को। आप उस दिन के अखबारात और टीवी उठाकर देखें, एक बंदे की गिरफ्तारी के ऊपर जो कि 4 घंटे के बाद छोड़ दिया गया, पहले वजीर आला ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गम और गुस्से का इजहार किया, उससे भी बात दिल में ठंड नहीं पड़ी तो भाई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आ गए। उन्होंने इतनी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इतनी धुआंधार, इतने गुस्से का इजहार किया कि आर्मी चीफ को कॉल करना पड़ गया। एक कैप्टन सफदर के गिरफ्तार होने पे बिलावल भुट्टो साहब को गुस्सा इतना आया कि आर्मी चीफ ने कॉल कर दी उनको और उनके दुखों का मदावा कर दिया। कराची के 1,60,00,000 1.5 करोड़ लोग कम गिन दिए गए। बिलावल भुट्टो को गुस्सा नहीं आ रहा। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से उनको कैप्टन सफदर के पकड़े जाने पर गुस्सा आया था, वो उसी तरह से गुस्से से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि उनके सूबे के दारुल खिलाफा कराची के 1,60,00,000 लोगों को 70 लाख लोगों को कम गिना गया है, उनके सूबे का नुकसान हो रहा है, उसी गुस्से से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और आर्मी चीफ से भी कहता हूं कि उसी तेजी से फिर बिलावल भुट्टो को कॉल करके कराची के लोगों का मसला हल कराएं, तो हम समझेंगे कि पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला है। वरना सब तासुब पे गेम चल रहा है, सारा का सारा सब तासुब पे चल रहा है। बकवास करते हैं सारे लोग, सारी हुकूमत के लोग कि ये इंसाफ पसंद लोग हैं, लोगों की खिदमत करने के लिए आए। नहीं, ये मुतासिब गवर्नमेंट है। फिर ये तासुब करते हैं, जुबान की बुनियाद पर तासुब के साथ ये गेम खेला जा रहा है और इससे किसी का नुकसान नहीं है, पाकिस्तान का नुकसान है। पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है और मजीद होगा इस तरह की तर्ज हुक्मरानी से। आपका क्या ख्याल है कि आप अखबारात में लिख देते हो कि कराची, हैदराबाद और सक्खर के डोमिसाइल वाले इस जॉब के लिए जहमत ना करें, तो लोगों के अंदर बड़ी खुशियां फूटती होंगी। आप अखबारात में लिख देते हो कि कराची, हैदराबाद के डोमिसाइल वाले इस दाखिले के लिए जहमत ना करें, तो लोग बड़े खुश होते होंगे। तासुब कर रहे हो, मुतासिबाना काम कर रहे हो। खुदा की कसम, आज अगर मैं मुहाजिर नाम पर सिर्फ सियासत करना चाहूं, कराची की हर गली में आग लगा दूं। मैं इतना पीपल्स पार्टी ने इतना जुल्म कर रखा है कि मैं अगर मुहाजिर नाम पर सियासत करना चाहूं, हर गली में इतने आइटम मौजूद हैं कि लोग लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन हमें पता है कि वो गलत रास्ता होगा, हमें पता है कि वो बंद गली का रास्ता होगा, हमें पता है कि इसमें सिंधियों का कोई कसूर नहीं है। पीपल्स पार्टी अगर कराची में बुरा कर रही है तो वो लाड़काना में भी बुरा कर रही है। वो कश्मीर में भी जो बच्चे मर रहे हैं वो भी सिंधी हैं। लाड़काना में जिन बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं और उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है, मर रहे हैं, वो भी सिंधी हैं। तो मैं सिंधी और मुहाजिर की सियासत नहीं कर रहा। मुझे मरकर कब्र में जाना है, मुझे अल्लाह के आगे जाकर खड़े होना है। मुझे पता है कि वो भी कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, ये भी कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। ये रसूल की उम्मत है, ये रसूल की उम्मत में तासुब कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। मैं ये काम इसलिए नहीं कर रहा, इसलिए मुहाजिरों को समझाता हूं कि देखो, ये सिंधी तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है बुरा। लेकिन कब तक नौजवान मेरी बात मानेंगे? कब तक मेरी बात पर जो है सब्र करेंगे? ये ना, और कोई इनका पूछने वाला नहीं है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है कि एक इमरान खान साहब की हुकूमत चलाने के लिए पीपल्स पार्टी को आज़ाद छोड़ दिया गया है कि पीपल्स पार्टी से बाद में निपटेंगे, पहले जो है वो PMLN से निपट लिया जाए। आज़ाद छोड़ दिया, जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं सिंध के अंदर। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि बहुत देर तक इस तरह की तर्ज हुक्मरानी नहीं चलेगी। बड़ा जुल्म है, आपने हमसे पानी छीन लिया, हमने कुछ नहीं कहा। आपने शहर को कचरे में डुबो दिया, हमने कुछ नहीं कहा। आपने एक नौकरी नहीं दी सरकारी, हमने कुछ नहीं कहा। आपने एक बस नहीं दी है हमें यहाँ पर, हमने कुछ नहीं कहा है यहाँ पे। लेकिन अगर आप मुझे गिनने के लिए तैयार नहीं हो, आप मेरी पॉपुलेशन, आप मुझे इस पाकिस्तानी गिनने के लिए तैयार नहीं हो, हम खामोश नहीं रहेंगे, इस पर हम चुप नहीं रहेंगे, इस पर हम एहतजाज करेंगे। कल कराची में लियाकताबाद के लोगों ने लियाकताबाद ब्रिज के नीचे एहतजाज किया है। आज से 15-20 दिन पहले शार फैसल पे एहतजाज किया, रैली निकाल कर लेकर गए। अब ये सिलसिला बढ़ेगा, अब ये सिलसिला बढ़ेगा, इसलिए कि मुझे ऐसे मुल्क में नहीं जीना जहाँ पर मुझे ये मुल्क के रियासत के लोग, मुझे हुकूमत के लोग मुझे गिनने से डरें।
कराची के लोगों को गिनने से डरें। ऐसे मुल्क में नहीं जीना। फिर हमें इस जीने से अच्छा मौत हमें पसंद है, फिर हमें मौत आ जानी चाहिए। लेकिन अगर ये रियासत मुझे गिनने के लिए तैयार नहीं है, हम इस पर खामोश नहीं बैठेंगे। दूसरी बात आपसे ये कहना है कि पाक सरजमीन पार्टी के झंडे के नीचे कराची में 28 फरवरी को अलासिफ स्क्वायर सोहराब गोड पर हम पख्तूनों का जलसा करने जा रहे हैं, सिर्फ पख्तूनों का। पाक सरजमीन पार्टी वाहिद जमात है जिसने सारी कौमियतों को यहाँ पर आपस में जोड़ा है, हमने आपस में जोड़ा, और उसका हम मुजाहरा करने जा रहे हैं कि कराची में पख्तूनों की भी सबसे बड़ी पार्टी पाक सरजमीन पार्टी है। वो इलाके जहाँ पर मुहाजिर और पख्तून एक साथ नज़र नहीं आ सकते थे, एक दूसरे की जानों के दुश्मन थे, आज अल्लाह का शुक्र है कि भाई भाई हो गए हैं। और उसका मुजाहरा इंशाअल्लाह ताला सोहराब गोड के पख्तून 28 फरवरी को एक बहुत अजीमुशान जलसा करने जा रहे हैं अलासिफ स्क्वायर के पीछे। मैं कराची के तमाम पख्तूनों से कहता हूँ कि आएँ और उस जलसे को मैं जो कि एक तारीख रकम करने जा रही है। यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए नफ़रत की सियासत ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए ज़ुबान की बुनियाद पर लड़ाने और मारने और मरने की सियासत ख़त्म हो जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला एक झंडे के नीचे आकर हम सिर्फ अपने हुकूक की बात करेंगे। जो मज़लूम है उसके साथ खड़े होंगे, जो जालिम है उसका हाथ रोकेंगे। ये नहीं देखेंगे कि मज़लूम की ज़ुबान कौन सी है, ये नहीं देखेंगे कि उसका मसलक कौन सा है। अगर मज़लूम है, पाकिस्तानी है, इंसान है, हमारा भाई है, और जालिम कोई भी हो, चाहे वो मेरी ज़ुबान बोलने वाला हो, मेरे मसलक वाला हो, मेरे मज़हब वाला हो, उसका हाथ हमें हर हाल में रोकना है। अब इस पाकिस्तान में दो ही कौमियतें होनी चाहिए, एक मज़लूम और एक जालिम, और जालिम के हाथ को हमें रोकना है इंशाअल्लाह ताला। आप हज़रात का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी आपने कहा जी 1,70,000 कम गिना गया, 1,70,00,000 कम गिना गया, आपको एतराज़ है। वसीम अख्तर चोर है, आपको एतराज़ है। वफाकी हुकूमत का अहल है, आपको एतराज़ है। सर माज़रत के साथ आप इस शहर के बेटे हैं, इस सूबे के बेटे हैं, आप कहते हैं कि आपको इस काम के लिए अल्लाह ने चुना है। सर इस सूबे में मासूम बच्चों के साथ रेप केसेस में इजाफा हो गया है। 2 दिन कबल भी इंटीरियर सिंध में 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। सर किसी सियासी पार्टी के किसी भी शख्स के मुँह से हमने एक जुमला नहीं सुना। देखिए, अगर हम और सुबह से लेकर शाम तक होने वाले वाक़यात पे अपनी नोहा पढ़ना शुरू करें, खुदा की कसम दिन गुजर जाए, हफ्ता गुजर जाए और महीनों गुजर जाए, ऐसी दास्तान है। ना आपके पास टाइम होगा, ना आपके अखबारों में, ना आपके टीवी पे टाइम होगा, और ना किसी के पास सुनने का टाइम होगा। देखिए, इस पूरे निज़ाम को तब्दील करने की ज़रूरत है। हमने बारहा इसके ऊपर आवाज़ उठाई है। अगर इस पर्टिकुलर वाक़े पे कोई अगर आवाज़ नहीं आई होगी, लेकिन इस इशू के ऊपर हमने बड़ा वोकल होकर इसके ऊपर बात की है। लेकिन इसका हल सिर्फ बयान देना नहीं है। इस निज़ाम को जब तक हम जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, इन हुक्मरानों को या तो अल्लाह ताला इनको नसीहत दे, या तो इनको नेस्त नाबूद करे अल्लाह ताला, और आवाम को इसके लिए जुड़ना पड़ेगा। बयानात से काम नहीं चलेगा, हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा लोगों को। थैंक